जी। सो आज मैंने टॉपिक चूज़ किया है प्रेजेंटेशन करने के लिए सुश्रुत संहिता पर। तो हमें अ, शुरुआत में ये समझना चाहिए कि सुश्रुत कौन थे, कब थे और उनके काल में मेडिकल टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस कहाँ तक पहुँच चुका था वैदिक पीरियड के बाद, और उन्होंने कहाँ से अपना काम आरंभ किया और उनका कार्य मुख्यतः है क्या। So initially I was going to present only about neurosurgery and his work on specified neurosurgery side, but I found out that it makes sense to start with much more fundamental knowledge from this particular individual who lived around 600 BC. And once we understand the perspective with which he looks at the medical information, which is quite different than what current evidence-based research or Western medicine जिसे हम कहते हैं. So before we go into the specifics of the procedures followed and everything, we should understand what principles with which he used to look at medical science. So let us begin. So most of this research has been done by Kaviraj Kunjalal Vishagaratna. So this was taken from his translation of Sushrut Samhita. So he says in the Samhita that to Sushrut may be attributed the glory of elevating the art of handling a lancet. Lancet माने जो हम फोर्सेप की तरह बोलते हैं ना, जो हम एक ब्लेड उसके साथ अटैच्ड होता है, एक पेन की तरह उपयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है. So that art of handling a lancet of forceps to the status of practical science. ये उनका वाक्य है. So हम इतिहास से शुरू करते हैं. The history of it. So who was Sushrut? So there are multiple sources which can be conflicting at times. So ऐसे कहा जाता है कि सुश्रुत जी जो थे विश्वामित्र जी के वंशज थे. हमारे इतिहास में हमें पता है कि विश्वामित्र कोई एक नहीं, देयर आर मल्टीपल people named Vishwamitra Rishi, although all of them are rishis. But जैसे in Ramayana we have Vishwamitra Rishi who teaches Ram, and there are other Vishwamitras as well, which so one of the references probably one of all of you can look it up whether I'm saying it right. Vishwamitra और मेनका का जो 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 कहानी है वो एक अलग विश्वामित्र है. तो विश्वामित्र अलग अलग हैं. उसके बाद एक नाम आता है दिवोदास. सो विश्वामित्र के लिनिएज में दिवोदास ये नाम जो आता है दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू धन्वंतरी. ओके, सो दिवोदास धन्वंतरी who is known to all of us as the god which is prayed for in Ayurveda. So he represents Ayurveda. So medical science in India is called Ayurveda basically, and he is a god of that. So any progenitor, let's say we have a professor today in IIT Bombay, and let's say he starts a new discipline altogether, then that Shastra will be always represented by that one principle, which is Dhanvantari in this case. Imagine. So Dhanvantari is also termed as Kashiraj. So Dhanvantari has been historically assumed to be a king who ruled Kashi at a point of time. So I've given some references here, like how these conflicting studies come. And in this particular Samhita, there is an explanation given to all of these conflicting situations. So we can see in Mahabharata, for example, Vishwamitra Atmaja. So I can understand from this, Atmaja is a person who has come from Vishwamitra. So Vishwamitra Atmaja in Mahabharatam, whereas in Garud Puranam, you can see here it is Divodamasta Datmaja. So Sushruta has been attributed to Dhanvantari's lineage as well as Vishwamitra's lineage. Historically, there is some consensus about it that Sushruta existed from 800 to 600 BC.
Now, the author, as in the translator of Sushrut Samhita, likes to explain why this is the case. He says that in a country like India, where life itself was simply regarded as an illusion, the lives of kings or commoners were deemed matter of little moment to the vital economy of the race. So हिस्ट्री हमारे हम देख पा रहे हैं कि कन्फ्लिक्टिंग टाइमलाइंस हैं, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं, कन्फ्लिक्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज सेम नाम के बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, पर हमारे इतिहासकारों ने उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया. अभी क्यों नहीं दिया, ये ऑथर कह रहा है कि lives of saints, canonized kings, can be made use of in certain instances as themes of national epics. But जो भी इतिहास बताया जा रहा है, that is only to elucidate or enunciate the doctrines of certain schools of ethics or metaphysics. तो सरल भाषा में बताऊं तो किसी भी महात्मा, किसी भी राजा की कहानी जो बताई जाती है, तब उसका एक उद्देश्य से बताई जाती है. तो उसका उद्देश्य यही होता है कि मेटाफिजिकल, हायर, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना. तो उससे ज़्यादा प्राधान्य मिला है हमारे इतिहास में. तो लोगों ने कब एग्जिस्ट कर रहे थे, किसके आत्मज थे, कभी कभी इनमें कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें आ जाती है, पर मूल जो प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, मूल जो कथा बताई जाती है, उसको ज़्यादा प्राधान्य मिलता है. उससे समाज पर क्या परिणाम हो रहा है, उस पर प्राधान्य दिया जाता है. तो इसीलिए देर आर मेनी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस. और ऑल्सो हमारे लोगों ने अगर प्रयास भी किया होगा इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान से नोट डाउन करना, वो हमारे कई सारे प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आज लुप्त हो चुका है कई सारा इंफॉर्मेशन. बट हाँ, तो ये रीज़न बताया गया है. इसके बाद ऐसे कहा गया है कि 800 से 600 बीसी के बीच के कालावधि में सुश्रुत हुआ करते थे. और उसके बाद आज जो हमारे पास सुश्रुत संहिता है, वो नागार्जुन ने उसका रिडैक्टमेंट किया है, रीअसेस किया, रिवाइज किया है. सो आज हमारे पास जो उपलब्ध है, दैट इज फ्रॉम नागार्जुन. सो जब ये लोगों को पता चला कि सुश्रुत थे और उन्होंने कुछ, हिपोक्रेटिस, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिपोक्रेटिस इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. तो उनके बहुत सारे एफोरिज्म्स, एज इन बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो मैच करते हैं सुश्रुत जी से. तो ऐसे हो जाता है कि जो भी इसे पहले देखेगा, अभी वेस्टर्नर इसको देखेगा तो पता चलेगा कि उनके बायसेस आ जाएंगे उसमें. तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ, सुश्रुत वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिपोक्रेटिस. तो अभी इसे हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं. हिपोक्रेटिस कब थे? 5th सेंचुरी बीसी में. सुश्रुत थे 6th से 8th सेंचुरी बीसी के बीच में. सो हमें पहला क्लू तो वहाँ मिल जाता है कि क्रोनोलॉजी समझिए. सुश्रुत पहले आए हैं. उसके बाद ये बताया जाता है कि हिपोक्रेटिस के पहले पाइथागोरस हुआ करते थे. तो पाइथागोरस की बर्थ और डेथ यहाँ पे मैंने मेंशन की है. 570 बीसी से 490 बीसी के बीच में वो रहे हैं. उनको हिपोक्रेटिस से पहले, दिख ही रहा है वो थे पहले, पर ऐसे माना जाता है कि ही वॉज द फादर ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग अमंग द ग्रीक्स एंड हेलेनिक पीपल. सो ग्रीक्स और एथेंस जो भी थे, उन सब के आर्ट ऑफ हीलिंग या हेल्थ साइंसेस के प्रोजेनाइटर थे पाइथागोरस. ओके. सो एक मिस्टर पोकॉक इज अ राइटर एंड ही राइट्स इन इंडिया इन ग्रीस. ही आइडेंटिफाइज पाइथागोरस विद बुद्ध गुरुज और बुद्धा. सो एक ऐसे समझिए कि उस कालावधि में, वैदिक पीरियड के बाद, जब सुश्रुत 8th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी बीसी में थे, तब उन्होंने उनका जो भी कार्य था उससे ब्रॉडकास्ट करने के लिए या उसको हर जगह, हर प्रॉपर सिविलाइजेशन में फैलाने के लिए ब्राह्मणास और बुद्धिस्ट श्रमणास हुआ करते थे. तो ये बहुत कॉमन नॉलेज है. अपेरेंटली मैंने जब स्टडी किया था मुझे पता चला कि कॉमन नॉलेज है कि बुद्धिस्ट श्रमणास को भेजा जाता था अलग अलग सिविलाइजेशंस में. तो ग्रीस में भी वो गए थे. तो ग्रीक में उनके बुक में लिखा है ग्रीक सिमनॉय. आप देख पा रहे हैं सिमनॉय और श्रमण, ये पास है, ये वर्ड्स आर लिंग्विस्टिकली वेरी क्लोज, श्रमणास एंड सिमनॉय. सो ग्रीस में जब अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स और अपने हिस्टोरिकल जो भी इंफॉर्मेशन थी, भारत जन्य हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन, फिलोसॉफी, मेटाफिजिक्स, ये सब पढ़ाने के लिए वो ग्रीस जाया करते थे. और ग्रीस में जाकर उन्हें पाइथागोरस मिलते हैं. और पाइथागोरस
उनसे ये सब चीज़ें सीखते हैं। ये इंडिया इन ग्रीस में लिखा था और उन्हें उनके बुद्ध के लिनिएज में रखा गया पाइथागोरस को, ऐसे कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं। और फिर उसके पश्चात हिपोक्रेटिस हैं। तो हम समझ सकते हैं कि क्रोनोलॉजी में जो वेस्टर्न स्कॉलर्स पहले बहुत हेस्टिली उन्होंने कंक्लूड किया था कि हिपोक्रेटिस से सुश्रुत इन्फ्लुएंस हुए थे, बट इट इज ऑब्वियसली वाइस वर्सा। सो ये मैंने जो पहले ही स्लाइड में बोला, बट ये मैंने फिर से लिखा है। द डिस्टेंट मिशन stations or monasteries of Buddhism were the principal centers for disseminating Brahmanic culture in distant lands like Greece. Okay. सो हिपोक्रेटिस ने क्या किया कि उसने केवल अभी जैसे ये बुद्धिस्ट मंक्स या ब्राह्मणास वहाँ जाया करते थे, उन्हें बताया करते थे हमारे फिलोसफी मेटाफिजिक्स के बारे में, तो वो केवल मेटाफिजिक्स के बारे में नहीं बट मेडिसिन के बारे में भी, उसके एसोसिएटेड चीज़ों के बारे में, हमारे सिविलाइजेशन के बारे में उनको बताते थे। बट हिपोक्रेटिस ने मेटाफिजिक्स वगैरह सब थोड़ा साइड में रख के केवल ऑब्जेक्टिव मेडिकल साइंस पे ध्यान दिया। सो दैट इज व्हाट हिपोक्रेटिस डिड। तो ये मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, संहिता में बताए गए हैं रेफरेंसेस जो मैंने ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए यूज़ किया। उसमें ये सारी जो भी अभी मैंने बताया ग्रीस इन इंडिया, सॉरी इंडिया इन ग्रीस के बुक के बारे में, वो यहाँ पर आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो ये हुआ एक चैनल जब ब्राह्मणास और श्रमणास वहाँ जाकर ग्रीस में जाकर ये सारी चीज़ें पढ़ाया करते थे। ये दूसरा चैनल बताता हूँ। तो इस दूसरे चैनल का स्टार्टिंग हुआ था 7th century AD ऑनवर्ड्स। तो ये जब ये आफ्टर इस्लामिक इन्वेजन्स एंड सो दिस इज दैट पीरियड। सो हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले चरक और सुश्रुत के वर्ड्स ट्रांसलेट हुए अरबी में, और कलिफ अल मंसूर जो उस समय अब्बासिद डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे, उनको फाउंडर ऑफ बगदाद कहा जाता है। तो बगदाद जहाँ आज इराक में स्थित है, वहाँ पर ये कलीफ थे और उन्होंने ये ट्रांसलेशंस करवाए, और 7th और 8th century AD में, बहुत लेट हुआ है, मतलब ये 500 हम देख रहे हैं 600 से 800 BC से 7th century AD में ये ट्रांसलेशंस हो पाए। तो उन्होंने इन बुक्स के नाम थे केलाले शोशुरे अल हिंदी, किताब शाशुन अल हिंदी एंड किताब ए सुशुरुत। तो ये ट्रांसलेशंस जब हुए उसके बाद इनका लैटिन में अनुवाद हुआ, और लैटिन में अनुवाद होने के बाद यूरोपियन मेडिसिन का ये बेसिस बने। तो आज का जो करंट यूरोपियन मेडिसिन हमें बहुत प्रचलित है और बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, उसका बेसिस यहीं से आया है। सो हम यहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, पब्लिश्ड बाय हेस्लर, जो लैटिन में ट्रांसलेट हुए, और जर्मन में ट्रांसलेट हुआ है म्यूलर के, हमें मैक्स म्यूलर पता है, उन्होंने 19th century में किया है। और कंप्लीट ट्रांसलेशन जो अभी मैंने रेफर किया, कविराज कुंजलाल विशाखरत्न, उन्होंने किया था। तो 3 वॉल्यूम्स में उन्होंने पब्लिश किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। तो ये हुई हिस्ट्री, उसका इतिहास हुआ। अभी हम साइंस के बारे में बात करते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण इस बुक में क्या है? सो this great text included information on diagnosis and treatment of over 1100 diseases, and there are hundreds of medicinal plants also that have been mentioned in this. There are many instructions in this book which give detailed accounts of how surgical procedures are to be done. So आयुर्वेद के principles एक बार समझते हैं। So आयुर्वेद is based on 3 main ग्रंथस। So एक है चरक संहिता जो अग्निवेश स्वामी ने की थी। स्वामी अग्निवेश मत बोलो यार ऋषि, सॉरी, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अग्निवेश ऋषि ने की थी, and later it was edited by Charak. So that forms the foundation of medicine. Later Sushrut Samhita, which focuses mainly on surgery, that was published, and जैसे मैंने बोला नागार्जुन ने उसका रिडक्शन किया। Ashtadhyayi Samhita is the third book which forms the third pillar of Ayurveda. It was composed by Vagbhat in Sindh. So although इन सारे तीनों बुक्स में कुछ सिमिलर चीज़ें सामने आती हैं, एसेंशियली सब कुछ सिमिलर है, पर एम्फोसिस अलग अलग चीज़ों पे है। जैसे चरक संहिता में ओवरऑल मेडिसिन पे फोकस है,
सुश्रुत संहिता में सर्जरी पे ज़्यादा फोकस है, और अष्टांग में इसका एसेंस, इन दोनों चीज़ों का एसेंस आ जाता है. एंड देर आर अकाउंट्स टू से, इस बुक में सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि आयुर्वेद एक अथर्ववेद का उपवेद है, और व्यास कहते हैं कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है. तो ये दो फिलोसोफर्स और ऋषियों के हिसाब से अलग अलग ऋग्वेदों से प्रेरित और सोर्स किया हुआ है. सो आयुर्वेद में सर्जरी सुश्रुत के पहले काल में भी थी. सो इन ऋग्वेदा इट इज सीन दैट ड्यूरिंग वॉर टाइम्स एम्पुटेशंस हुआ करते थे. उस एम्पुटेशंस के बाद जैसे आजकल प्रोस्थेसिस लगते हैं चलने के लिए वगैरह, वैसे आयरन सब्स्टिट्यूट्स बोन्स की जगह पे यूज़ किए जाते थे. आइज वर प्लग्ड आउट इफ दे आर इंजर्ड. एरो शाफ्ट्स जो वॉर में एक कॉमन चीज़ है, होते रहता है, तो दे वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिम्स ऑफ द आर्यन वॉरियर्स. सो ये कौन किया करता था? अश्विन्स किया करते थे. सो उन्हें सर्जन्स ऑफ हेवन कहा गया. ये ट्रांसलेशन की एक लिमिटेशन है. बट जब पीस टाइम्स हुआ करते थे तब आर्यन सेटलमेंट्स बहुत बढ़ चुके थे, तो पीस बहुत हाई था, और रिच नोबल्स कैरेजेस वगैरह में ट्रैवल किया करते थे. एनिमल एक्सीडेंट्स हुआ करते थे, तो वेटरनरी भी इसमें मेंशन है. मतलब वैदिक पीरियड में वेटरनरी एज इन एनिमल्स हु गेट इंजर्ड वर ट्रीटेड. वुमेन जब बर्थिंग के टाइम पे, इसे पार्चुरेशन कहा जाता है. पार्चुरेशन जब बच्चों की डिलीवरी होती है, उसके रिगार्डिंग वेदों में कुछ सोर्सेस मिलते हैं. लव पोशंस है, मतलब लोगों ने किया है उसके बारे में, टू एनहांस सेक्सुअल प्लेजर एंड अदर थिंग्स. सो जब लॉन्ग पीस हुआ करता था, जब आर्यन सेटलमेंट्स बढ़ी, तब अर्थात मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. ये ऑथर जो हैं उन्होंने बहुत सारे इसमें रेफरेंसेस यूज़ किए हैं आर्यन थियोरी के बारे में, तो और उन्होंने कुछ सब्सटैंशिएट नहीं किया है. ये आप देख पाएंगे, मतलब आप जब ये सुश्रुत संहिता बाय विशाखरत्ना पढ़ेंगे, उसमें आर्यन थियोरी के रेफरेंसेस आते हैं, बट ही हैजंट सब्सटैंशिएटेड दोज रेफरेंसेस विथ एनी अदर डॉक्यूमेंट. ये उस ज़माने में, एज इन 1907 में बुक लिखी गई थी, तब ये प्रचलित थियोरी थी, आर्यन थियोरी. तो उस हिसाब से आर्यन इन्वेजन थियोरी, तो उस हिसाब से उन्होंने कुछ एनालॉजीज फिट किए हैं, मतलब उनके नैरेटिव में. बट हम अब देख पाएंगे, एवरीथिंग इज अप टू स्क्रूटिनी, वी कैन हैव अ लुक एट दैट. सो जब ऑपुलेंस बढ़ा, जब आर्यन सेटलमेंट्स बढ़े, तब थोड़े, मतलब क्या कहते हैं, जैसे आज के काल में भी बहुत सारी चीज़ें सुलभ हो गई हैं, उस हिसाब से लोग अपने कार्य करते हैं. तो that led to other kind of problems, and those problems were solved by all of these rishis, Bharadwaj, Angiras, Jamadagni, Atreya, Gautam, Agastya. ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है, और उन सब ने अपनी संहिता लिखी. पर हम आज देख पा रहे हैं कुछ चुनिंदा ही संहिताएं हमारे पढ़ने में आ रही हैं, तो बाकियों का क्या हुआ हम कुछ अभी नहीं बोल सकते. ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह फंक्शन करते थे, अलग अलग अप्रोचेस रखते थे साइंस में. तो सुश्रुत संहिता पे फोकस करते हैं कि उन्होंने क्या किया, लाइक व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट सुश्रुत संहिता. सो एज आई सेड, इन वैदिक लिटरेचर all of these references were available, but always science has to be started somewhere. Sushrut did not disregard anything that came from Vedas. He has kept everything. In fact, he has compiled all of the surgical experiences of surgeons from the past that formed the important compendium. But apart from that, he was a scientist as well, so he conducted research by himself and made sure that he appended all of that information in that samhita. And the samhita also describes how he did it. So he first figured out that anatomy is the basis of surgery. मतलब आप देख पाते हैं कि बॉडी में है क्या, every single part, every single minute part, उनके अलग अलग layers होते हैं. It's very complex. ब्लड सप्लाई अलग होता है, नर्व्स अलग होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होती है. एवरी सिंगल सिस्टम हैज टू बी अप्रोच्ड सर्जिकली फॉर विथ एन इंटेंशन ऑफ क्योरिंग. At the same time, you have to make sure nothing becomes dysfunctional because of these invasive procedures. So it's a very difficult task. सर्जरी में sanitation is immensely important. So जो Bacillus theory अभी 18th century में, 18th century में यूरोप में it was very popular that this is what causes diseases.
we can see that aseptic procedures are already mentioned in Sushruta Samhita. So we'll come to that one by one. So anatomy, since it is the basis of surgery, how he did it? He used lower animals. So जैसे वैदिक sacrifices में animals का sacrifice होता था, उनसे tissues source करके उस पर dissection करना या उनकी anatomy study करना और अनुमान लगाना कि इस lower animal में अगर ये जैसे mammal है तो humans को भी आप कुछ correlation तो कर ही पाते हैं, जैसे mammals में भी same चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने स्टडी किया. सेकेंडली, जो मृत व्यक्ति हुआ करते थे, सो उन्होंने ये उस समय डिसेक्शन की तरह जैसे आज भी हम हमारे शरीर दान करते हैं किसी मेडिकल कॉलेज के लिए, उस ज़माने में भी ये सब चीज़ों का उन्होंने एडवोकेसी किया और प्रचलन में लाया और स्टडी किया. उस बेसिस पे उन्होंने सर्जरी जैसा एक डिसिप्लिन डिज़ाइन किया. एंशिएंट इजिप्ट में कुछ ऐसे मतलब वर्ड्स, ये लिंग्विस्टिक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, मतलब आप वर्ड्स की सिमिलैरिटीज देख देख के उस हिस्ट्री का अनुमान लगा लेते हैं. जैसे परुश्चित्त हुआ करते थे इजिप्ट में, सो पुरुषचित्त विच मीन्स डिसेक्टर, एग्जैक्ट सेम वर्ड उधर यूज करके इजिप्ट में भी ये सब चीज़ें डिसेक्शन वगैरह किया जाता था. डॉक्टर वाइस करके एनाटोमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हिंदू फिलोसोफर्स अनडाउटेडली डिजर्व द क्रेडिट ऑफ हैविंग entertained sound and philosophical views respecting the uses of the dead to the living. मतलब जो मृत व्यक्ति हो चुका है उसका आप जो लोग जीवित हैं उनके लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे जो लोग जीवित हैं उनका जीवन सरल कर सकते हैं और उन्हें रोगों से मुक्त कर सकते हैं. सो डॉक्टर वाइस क्रेडिट्स दिस टू हिंदू फिलोसोफर्स, मेनली सुश्रुत. सो ऐसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स वो बनाया करते थे सुश्रुत, जो ये उनके मेथोडोलॉजी में आ जाता है कि these are so many different yantras. He used to label them mostly based on animals. हम देख पा रहे हैं यहाँ पे वृक्खा मुख यंत्र है, कुछ श्वान मुख यंत्र है, and for different procedures he used to use all of this, and he has specified for which procedure what to use. And also he has given the future researchers and space to create their own yantras for this. Now these instruments have been used by Germans as well as late as 17th 18th century, for plastic surgery and all. So these instruments are still in use, not every single one of them, although like you can pick up the most essential ones and use them. So that is what has happened in the past. So this one or two concluding slides I would like to make, but this is exactly what is the practical application of Samveta, most of which is practiced even today. So that much value you have to attribute to a person who lived in 600 to 800 BC, that he is capable of coming up with all of these research innovations. फ्यूमिगेशन, ओके, तो जैसे किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में आपको पहले रूम को क्लीन करना पड़ता है, उसको एंटीसेप्टिक यूज करके डिसइंफेक्ट करना पड़ता है. सो ही यूज्ड टू डू दिस in a sick room. He used to fumigate all the surgical rooms for surgery using white mustard and nimba leaves. Okay. He is also known as the father of plastic surgery. So there is a surgeon known as Hirschberg in Germany, and he was the one who understood what rhinoplasty and how rhinoplasty can be done. So he has quoted Sushrut saying that it is unimaginable that how a person living in those ancient times has been able to come up with this, and this exact procedure is also done today. ये rhinoplasty मतलब होता क्या है कि नोज जब कट जाता है तब हमारे चीक के ऊपर से स्किन निकाल के नोज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो अभी इसके लिए एक सिंपल इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ. नाक कट जाना जो कहते हैं ना, तुमने तो हमारी नाक काट दी. तो एक ज़माना हुआ करता था कि जब में नाक कटती थी, मतलब अगर किसी ने सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं किए हैं तो कुछ पता नहीं किन्होंने, मतलब हु वर द एग्जीक्यूटर्स ऑफ दीज काइंड ऑफ लॉ इम्पोजिशंस, बट देयर वाज अ सिस्टम, इफ समबडी हैज डिसोबेड या एडल्ट्री की है या कुछ सोसाइटी के लिए हानिकारक चीज़ें की हैं तो नाक काटी जाती थी. तो जो लोग जिनकी नाक कटती थी, Sushruta used to bring them back and he used to reconstruct their noses. So this is how rhinoplasty came into
being, and it is even practiced today. So ये एक sentence बहुत interesting लगा मुझे. The whole plastic surgery in Europe took a new flight when these cunning devices of Indian workmen became known to us. जो मैंने list दिखाई थी ना आपको, ऐसे 125 instruments उनके पास हुआ करते थे. Amputations आप समझ पा रहे हैं कि war situations बहुत recurringly हुआ करते होंगे उस जमाने में, तो amputations common बात हो गई थी. और एनेस्थीसिया आपने सुना ही होगा, जिसे भूल देना कहते हैं, मराठी में भूल देना कहते हैं, मुझे पता नहीं हिंदी में एग्जैक्टली क्या कहते हैं, बट हाँ एनेस्थीसिया. वो मेडिकेटेड वाइन्स यूज किया करते थे, एक उन्हें सम्मोहिनी बोलते थे, एंड यू नो दैट इज हाउ ही यूज्ड टू कीप पीपल अवे फ्रॉम पेन व्हाइल ही वाज एम्प्यूटेटिंग एंड अदर थिंग्स. फ्रैक्चर्स हील करना. ये इंटेस्टाइन लिविंग ब्लैक एंट्स लिखा है ना मैंने, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं उसका आपको पिक्चर थोड़ी देर में दिखाऊंगा. लिथोटॉमी. सो किडनी स्टोन्स यूरेथ्रा में हुआ करते थे, उनकी सर्जरी कैसे करनी है उन्होंने सुश्रुत संविदा में बता कर रखा है. कैटरैक्ट काउचिंग इज काइंड ऑफ प्रोसीजर इन विच कैटरैक्ट जब होता है ना, तब हम आजकल उसका लेंस रिप्लेस किया जाता है, उस जमाने में रिप्लेस नहीं किया जाता था. लेंस को ऐसे पीछे ढकेल दिया जाता था, बट उससे क्या होता था कि एटलीस्ट कुछ नहीं दिखने वाले मनुष्य को दिखने लग जाता था, शेप्स वगैरह दिख जाते थे. तो दिस इज दैट प्रोसीजर, ही यूज्ड टू डू दैट. मिडवाइफरी, जिसे मिडवाइफरी मतलब डिलीवरी से लेकर पहले कुछ सप्ताह तक माताओं की जो क्या कहते हैं केयर लेनी पड़ती है, तो रिगार्डिंग ये पूरा साइंस है मिडवाइफरी. सो सिजेरियन सेक्शंस, जो आज सिजेरियन सेक्शंस बोले जाते हैं, वो उस जमाने में प्रैक्टिस किया करते थे. पार्चुरेशन यानी मैंने बोला था डिलीवरी होने का प्रोसीजर. उन्होंने ये भी बता के रखा है कि कब सिजेरियन सेक्शन एक्चुअली में करना चाहिए. हर डिलीवरी के लिए सिजेरियन उन्होंने रिकमेंड नहीं किया. सो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि लैक्टेशन, मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड, एवरीथिंग वाज specific directions were given by Sushrut as to how all of these procedures are to be conducted, and it was very systematic and organized. Dissection के बारे में मैंने अलग एक स्लाइड रखी है कि यू नो डिसेक्शन इज नॉट दैट इजी. जैसे मैंने बोला, एक जैसे हाथ में पेन की तरह उसे यूज़ करना पड़ता है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को बताया करते थे कि हाउ टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस. सो यहाँ पे बताया गया है, प्यूपिल्स ऑफ धन्वंतरी मतलब सुश्रुत etc. They were using their knives repeatedly on natural and artificial objects that resemble diseased parts of the body before undertaking any actual operation. जैसे इंसिशन कुछ प्लांट्स पे किया करता था. पुष्पफल नाम का प्लांट है. अलवू एक वीनस प्लांट है, ऐसे मार्शी एरियाज में आता है, उस पर काम किया करते थे ब्लेड्स यूज़ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए. डेड एनिमल्स के यूरिनरी ब्लैडर्स यूज़ करते थे. वेनेसेक्शन मतलब आज ब्लड विड्रॉ करने के लिए वगैरह हम जो ब्लड देते हैं ना, वैसे सिमिलर प्रोसीजर वेनेसेक्शन उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वो डेड एनिमल्स पे करते थे. या वाटर लिली के स्टॉक्स, मतलब कमल की तरह एक फूल होता है वाटर लिली, उसके स्टॉक्स भी वेन की तरह होते हैं. सो ही स्टार्टेड यूजिंग ऑल ऑफ दैट. सो डमीज होते थे, आई थिंक लकड़ी के डमीज हुआ करते थे, जिसपे बैंडेजिंग और वो सब प्रैक्टिस होता था. कैथेटर्स आपको पता होंगे कि जब खाना वगैरह हम चबा नहीं पाते हैं एनेस्थेटिक स्टेट में सर्जरी के बाद वगैरह, तब ऐसे नलिकाएं दी जाती हैं, तो वो कैथेटर्स होते हैं. कभी कभी यूरिनरी कैथेटर भी होता है, जिससे आपको मतलब आप यूरिनेट नहीं कर पाते हैं, तब उनके लिए अलग कैथेटर होते हैं. तो ये सब चीज़ें उन्होंने उस ज़माने में सोची ही नहीं थी, बल्कि इम्प्लीमेंट भी कर दी थी. सो ये एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूचरिंग प्रोसीजर उन्होंने बताई है. तो जैसे आज कैटगट यूज़ होता है. कैटगट मतलब अगर कोई घाव बनाए इंटेस्टाइन पे वगैरह, तो उसे एक कोलेजन, जो एक प्रोटीन है जो बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है हर एक टिश्यू में, तो वो प्रोटीन हर स्पीशीज़ में कॉमन ही होता है. मतलब आप किसी और प्राणी से भी वो कोलेजन लेकर उसका धागा बना के सूचरिंग करते हैं, ताकि वो बायोकम्पैटिबल हो जाता है और डिसॉल्व हो जाता है बॉडी में. तो ये कैटगट आज के ज़माने में यूज़ होता है. उस ज़माने में ब्लैक एंट्स यूज़ करते थे. तो यहाँ पे 3 स्टेजेस है, आप देख पा रहे हैं. यहाँ पे एक एंट है, पूरी एंट दिख रही है, अभी जीवित है वो एंट, बट उसको बाइट करने के लिए बोला जाता है किसी घाव पर. वो बाइट कर लेती है और छोड़ती नहीं है. जैसे ही वो छोड़ती नहीं है, उसे ब्रेक करके केवल उसका
मतलब धड़ अलग किया जाता है और उसका सर वहाँ पे रखा जाता है, मुख उस पर रखा जाता है और वो सूचर वैसे का वैसा रह जाता है और वो बायोकम्पैटिबल भी है। तो ये एक प्रोसीजर उन्होंने इंटरेस्टिंगली रिसर्च करके और इम्प्लीमेंट किया करते थे। इंटेस्टाइन्स पर मुख्यतः इसका प्रयोग होता था। आज अगर आपको सुश्रुत संहिता पढ़नी है तो वो भारत में तो उसके ओरिजिनल लीव्स आपको मिलेंगे नहीं शायद, पर ये ओरिजिनल तो है नहीं वैसे भी। ये 12वीं से 13वीं शताब्दी में लिखी गई संहिता लॉस एंजलिस म्यूजियम में आपको मिल जाएगी, म्यूजियम ऑफ आर्ट में। और आज का although this is not a very popular opinion, but there are people who are uh, teaching students about some misinformation about who is the real father of surgery just based on, जैसे अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है ना, एक्चुअली है वो हिंदू न्यूमरल्स, बट अरेबिक न्यूमरल्स जिस कारणवश कहा जाता है उसी तरह हो सकते हैं। there are other surgeons in the world who have studied Sushrut and implemented it, but people with vested interests will always say that whatever suits their narrative. Thankfully it is not a popular opinion और हमें भी इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए ज़्यादा। ओके, तो ये मेरे रेफरेंसेस हैं जो मैंने यूज़ किए। थैंक यू।